Hello guys. In this video, we are going to solve the problem number 802, the find the eventual safe state question. So the problem statement is there is a directed graph. There is a directed graph of n nodes. Each node is labeled from 0 to n. The numbering on the nodes are from 0 to n. The graph of the graph is represented as 0 index 2D integer array where graph of I is an integer array of nodes adjacent to node I, meaning there is an edge from node I to each node in in graph of I. A node is a terminal node, and they given this. This is an important statement that a node is called a terminal node if there are no outgoing edges. A node is a safe node if every possible path starting from that node leads to a terminal node or another safe node. Okay, and return an array containing all the safe nodes of the graph, and the answer should be in the sorted ascending order. Yes, so they have stated it like this, that we are given with the graph of I adjacent list. We know that the ith node is connected to the set of adjacent nodes that are given in the graph of I, the second section which is given. Like for the zeroth index 1 and 2, that means zeroth node has an outgoing edge to 1 and to 2. Similarly, you can see it here, 0 to 1, and the second one is 0 to 2. So this is what given in the graph matrix or graph grid. So we have an important concept in here is that a terminal node is that which node having no outgoing edges. Here we can see that the number 6 node is having no outgoing edges. The number 5th node is also having no outgoing edges. So we can say that it is a terminal node. And they are saying that a node is called safe node if every possible path existing from that node leading into a terminal node or another safe node. तो वो बस ये कह रहे हैं कि मान लो कि हमारे पास ये है जिसके पास कोई आउटगोइंग एजेस नहीं है, और टू एक नोड है जहाँ से एक नोड जा रहा है वन के पास, और एक मान लो तीन के पास है जहाँ से इससे एक नोड जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वन है टर्मिनल नोड, बिकॉज टर्मिनल नोड नो आउट एज, ठीक है, कोई बाहर की तरफ जा नहीं रहा, तो वी कैन से दैट वन इज ए टर्मिनल नोड, एंड the 3 is a safe node itself because the one and only path going from 3 is leading into this one terminal node. So एक ही पाथ निकल रहा है तीन से और वो वन तक जा रहा है, so we can say that 3 is a safe node. बिकॉज सेफ नोड का डेफिनेशन ये था कि जितने भी पाथ्स उस नोड से निकल रहे हैं वो या तो एक टर्मिनल नोड पे एंड हुए या फिर एक सेफ नोड पे एंड हुए। तो सिमिलरली वी कैन सी दैट टू के साथ क्या है, एक नोड तो डायरेक्टली कनेक्टेड है वन के साथ जो कि खुद में एक टर्मिनल नोड है, मतलब कि ये वाली पाथ ओके है। क्या ये वाली पाथ ओके है? बोले कि टू से निकल के थ्री जा रही है, टू से निकल के थ्री जा रही है, और थ्री अपने आप में एक सेफ नोड है जो कि हम पहले से डिटरमाइन कर चुके हैं। सो दिस पाथ इज ऑल्सो गुड इन द केस ऑफ टू, कि एक पाथ है टर्मिनल नोड पे जा रही है, एक दूसरा पाथ है जो कि सेफ नोड पे जा रही है। तो कंडीशन ये था कि जितने भी एग्जिस्टिंग पाथ है वो every possible path starting from that particular node if leading into an a terminal or another safe node, then we can say that 2 is also a safe node. But the scenario when we are facing something like 1, 2, and 3, we can see that like here कि कौन से केस में अपन को हम नहीं बोल सकते हैं कि दैट इज नॉट अ सेफ नोड। सो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पर कि ये देखो, अगर थोड़ा सा हम स्टडी करें प्रॉब्लम को कि इट हैज़ टू इवेंचुअली लीड इनटू ए सेफ नोड, सो देयर शुडंट बी एनी एम्बिगिटी। मतलब एम्बिगिटी किस केस में आएगी? तुम बोलोगे यार हर वो पाथ अगर कनेक्टेड है तो वो तो इवेंचुअली लीड कर ही देगा ना कहीं पर, कहीं कहीं ना कहीं। लेकिन बिल्कुल सही है, पर ये सिनेरियो देखो, वन को स्टडी करते हैं, इफ वन इज ए सेफ नोड और नॉट। ओके, विल स्टडी दैट एंड विल यू विल इवेंचुअली गेट टू नो दैट कि व्हाट द एक्चुअली
definition of safe node in here. So one is having connection to node 2 and node 3. So one is connected to 2 कि अच्छा ये वाली पाथ को भी स्टडी करते हैं क्या, इज इट ओके और नॉट। मैंने कहा ठीक है, अभी 2 अनविजिटेड है, 2 के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, सो लेट्स स्टडी अबाउट 2। ओके, मैंने कहा कि 2 से कितना है, 2 से कनेक्शन है एक जो कि 5 तक है। 5 क्या है, देयर इज नो आउटगोइंग एज, सो 5 इज ए टर्मिनल नोड। तो मैं कह सकता हूं 2 से एक नोड जा रही है जो कि खुद में एक टर्मिनल है, तो आई कैन से दैट 2 इज ए सेफ नोड, 2 इज ए सेफ नोड। ठीक है, अब मैं स्टडी किसके लिए कर रहा था, 2 के लिए, पर ये पाथ जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 1 इज कनेक्टेड टू 2, 1 is connected to 2 and 2 wasn't determined yet, so I asked 2 कि क्या तुम एक सेफ नोड हो, 2 ने कहा कि हाँ मैं सेफ नोड हूँ, यहाँ पर डिटरमाइन हो गया। मतलब कि अच्छा ये पाथ एक सेफ नोड से कनेक्टेड है, तो वी कैन फॉर श्योर से दैट 2 1 से कनेक्टेड वाले जो 2 वाला पाथ है दैट इज ए सेफ path that is leading to a safe node 2, so we can say that इससे कोई दिक्कत नहीं है 1 को। पर जो और एक पाथ है, जो और एक पाथ है 1 से कनेक्टेड होके गया हुआ है 3, मैंने कहा अच्छा 3 के पास ऑप्शन है कुछ, मतलब 3 के पास डेटा है कि वो सेफ या अनसेफ है। बोला कि यार अभी तक तो मैंने एक्सप्लोर किया नहीं, 3 का स्टडी करते हैं। 3 से एक पाथ गया हुआ 0, 3 अपने आप को डिटरमाइन करने के लिए सेफ है या नहीं, वो पूछ रहा है कि 0 को कि भाई 0 तू बता तू सेफ है या नहीं। 0 बोला यार अभी तो मेरे को भी मुझे नहीं पता क्या है। उसने बोला कि मैं तो कनेक्टेड हूँ 2 से और मैं कनेक्टेड हूँ 1 से। तो बोल रहा है कि देखो 2 वाला तो ओके है क्योंकि इट इज ऑलरेडी सेफ नोड, सो 2 वाला पाथ 0 को सेफ बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। बट एट द मीन टाइम 0 इज लीडिंग इनटू ए नोड, 0's path is leading into another node which is leading into a ambiguous state। अब सोचो एक चीज अनएक्सप्लोर्ड था, उसको मैंने पूछा कि क्या तुम सेफ हो या अनसेफ हो, वो अपने आप में जो भी पॉसिबल पाथ है उधर जाके फॉर श्योर आंसर लाके बता रहा है कि सेफ हूं या अनसेफ हूं। मतलब अगर ट्रू होना है तो वो बता दे रहा है, अगर नहीं बता रहा, जैसे ये वाला केस, ये तो होल्ड पे था, वन वाज केप्ट होल्ड ना, ये तो होल्ड पे था। 1 से 2 पूछे थे, 2 ने हाँ बताया था, 1 से 3 पूछा, 3 ने फिर 0 को पूछा, 0 ने देखा कि यार मैं तो फिर से 1 को लीड कर रहा हूँ। सो दिस एम्बिग्यूटी लीड्स कि तुम सेफ कभी हो नहीं सकते। तो ये चीज हमें डिटरमाइन करनी थी कि अगर कोई भी वो सारे सेटअप नोड्स जो एक सर्कल में एग्जिस्ट करते हैं ना, जो एक साइकिल में एग्जिस्ट करते हैं ना, दे आर नॉट देर आर दे कांट बी स्टेटेड एज ए सेफ नोड। Okay, so every possible path must simply lead into another safe node or a terminal node। बट जीरो क्या कर, 1 से जो निकल रहा था वो 2 पे 3 पे जा रहा है, 3 वाला 0 पे एंड 0 वाला 1 पे। अब ये क्रॉस क्वेश्चन आप कर सकते हो मुझे, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था अपने फ्रेंड के साथ कि कंफ्यूजन एक बंदे को आ सकती है कि वो बोल सकता है कि ठीक है 2 ओके था, 1 से 2 वाला ओके था, 1 से 3 वाला श्योर नहीं थे, 3 से ये वाला श्योर नहीं थे, क्यों बोला कि 0 से 1 वाला श्योर नहीं थे, कि फिर एक पॉइंट पे 1 को ये मान के चल लो ना कि 1 की ये वाली पाथ को तुम इग्नोर मार के इधर से ओके ले लो। फिर बोला कि यार इसने तो खुद बोला है ना कि एवरी पॉसिबल पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम दैट नोड लीड्स टू टर्मिनल नोड, उसे लीड करना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि ए पाथ एग्जिस्ट करता है उसे इग्नोर मार के तुम सिर्फ इस वाले को कंसिडर करके ओके बोल दोगे, फिर तो इट वोंट मेक एनी सेंस ना। तो फिर प्रॉब्लम रहेगा ही क्या, फिर तो सारे ही ट्रू हो जाएंगे ऐसे में। तो वही है, हमें थोड़ा सा स्टडी करना था, थोड़ा सा इवन स्टेटमेंट थोड़ा डिस्कशन ग्रुप में भी बंदों ने डिस्कस किया हुआ है कि अगर वो साइकिल में नहीं है, अगर दे आर नॉट फॉर्मिंग ए साइकिल, देन वी कैन से दैट दे आर ए पार्ट ऑफ टर्मिनल नोड, बिकॉज दे विल इवेंचुअली एंड अप इन ए end up in a safe node। Okay, so with this statement we can say that Z6 is having no outgoing edges, so it is a terminal node, and 5 is having no outgoing edges, it is also a terminal node। 4 is having only one path that is leading to 5, so we can say that 4 is a safe node because only there is one path and that is leading into 5, which is itself a the terminal node, so we can say that it is a safe node। The 2 is only having one path leading into 5, so we can say that it is also a safe node।
The one is a unsafe node. We studied like how it is cyclically depending on 3, 3 is depending on 0, and 0 is depending on 1. So we at the end can say that 0 and 1 and 3 are not safe node. ठीक है, तो आंसर हमें इसीलिए 2 4 5 6 रिटर्न करना था. तो यहां से ना दो सोल्यूशन बनते हैं, यहाँ से दो सोल्यूशन बनते हैं. अब इसकी कंस्ट्रेंट तो 1e4 है. ऑफ कोर्स वी नीड टू राइट द सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ 1e4, एंड आल्सो यू नीड टू ऑब्जर्व इट कि तुम बोल सकते हो ना कि n नोड्स के लिए ग्राफ ऑफ i है ना. ग्राफ क्या है, 2D है ना. जीरो टू n-1 तक तो हर एक के करेस्पॉन्डिंग ग्राफ ऑफ 0, ग्राफ ऑफ 1, ऐसे करते करते ग्राफ ऑफ 1 है. तो बोले कि यार ये तो n है, ये भी कुछ एट मैक्स n हो गया, तो n स्क्वायर हो गया. n स्क्वायर फिर तो 1e8 ना हो जाए करके, टीएलई ना आ जाए करके उन्होंने पहले से ही ये स्टेटमेंट क्लियर कर रखी है कि जो नंबर ऑफ एजेस क्या है कि जीरोथ में कितने हैं ग्राफ ऑफ आई, ऐसे कर करके n-1 तक सबका सम करोगे, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू n इंटू एन रोज एम कॉलम्स के सेंस में बता रहा हूँ, एन क्रॉस एम बन जाता है. तो ये कोई 1e8 को लीड नहीं कर रहा, ये इट इज लिमिटेड अंटिल 1 से लेके 4 इंटू मतलब 40,000 तक की कंस्ट्रेंट है, तो इट इज इन लिमिट. सो यस, सो द एफिशिएंट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम द above discussion. What I felt like is there is two paths. ठीक है, there is two ways that we can solve it. Simple traverse, simple DFS traverse. एक चीज सोचो कि एक नोड से निकला, मैं उसके सारे पॉसिबल पाथ्स पे जा रहा हूँ, दो चीज देख रहा हूँ, क्या वो विजिटेड है, क्या वो विजिटेड नहीं है. अगर वो विजिटेड है, अगर वो विजिटेड है और उसके पास जो स्टेटमेंट होगा या तो वो सेफ होगा या फिर अनसेफ होगा, वो डायरेक्ट दे देगा. अगर नॉट विजिटेड है तो उसके लिए भी डीएफएस कॉल लगाओ. तो ऐसे करके या तो एक सिंपल डीएफएस ट्रैवर्सल का अप्रोच बन गया, ये बन गया सिंपल डीएफएस ट्रैवर्सल अप्रोच 1. एंड द अदर पार्ट इज व्हाट वी गॉट टू नो फ्रॉम दैट क्वेश्चन इज द एम्बिग्यूटी अराइज फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द साइकिल, है ना. ऑल दोस नोड्स दैट आर फॉर्मिंग a cycle is leading into ambiguity, and we can't say that they are a safe node. So cycle detection, दिस गिव्स अस द सेंस ऑफ, अगर हम प्रॉब्लम में ये कर दें कि जो जो साइकिल में इंक्लूड हो रहे हैं, ऑल दोस नोड्स दैट आर इंक्लूडेड इन ए साइकिल फॉर्मेशन, सो दे आर नॉट ए सेफ नोड, एंड इवेंचुअली यू कैन से दैट द रेस्ट ऑफ देम आर the safe node. Okay, so ये cycle detection in the directed edges is very clearly, very smoothly, like बहुत ही प्यारा सा एल्गोरिदम है इसके लिए. आई होप यू हैव गाइस हर्ड अबाउट इट, Khan's algorithm. So there is these two approaches. This is approach 2, this is approach 2, and let me erase it, this is approach 1. So yes, so मैंने जो solution करा वो मतलब at the end of the slides I have attached the solution to this Khan's algorithm, but let's first discuss about the simple DFS approach. So the diagram was something like that, the diagram was like this कि 0 था, 1 था, 2 था, 3 4 5 6, 4 to 5 था, 2 to 5 था, 3 to 0 था, 0 to 2 था, 0 to 1 था, 0 to 1 था, एंड 1 से 2 था, 1 से 3 था. तो इवेंचुअली हम क्या करेंगे ना, मैंने ऐसा अप्रोच लिया था कि एक काम करो तुम कि n नोड्स के लिए ना 3 स्टेट मेंटेन करो, 1 0 और 1, sorry -1 0 minus +1. So -1 will mean that not visited, 0 will mean that. अब एक चीज सोचो, इनिशियली मैंने क्या करा था ना कि अगर तुम किसी नोड पे ट्रैवर्सल डीएफएस कॉल लगा दिए तो उसे तो तुम ऐसे मार्क विजिट करना पड़ेगा ना. अब उसका कंप्लीट ट्रैवर्सल होने के बाद ही वी कैन ओनली डिटरमाइन देन आफ्टर कि ये सेफ है या नहीं है. बट बिफोर दैट वी हैव टू मार्क इट एज विजिटेड. तो बिफोर दैट वी आर सेइंग कि जब तक उसका फाइनल आंसर यस नहीं आ जाता या फिर नहीं भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि उसके बाकी जो कनेक्टेड नोड्स है दे आर सेइंग दैट वी आर नॉट सेफ, सो यू आल्सो कांट बी अ सेफ नोड. सो ये सिनेरियो बाद में हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेस्ट ऑफ द नोड्स दैट इज एडजेसेंट टू द करंट नोड आई आर सेइंग दैट वी आर ए सेफ नोड और वी आर ए टर्मिनल नोड, सो यू आर ए सेफ नोड बाय योरसेल्फ. सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज थी, पर मैं बेहतर होगा इनिशियली
जो ith नोड है जिसके लिए मैंने DFS कॉल किया है उसे मैं 0 मार के चलूं, इसका ये मतलब होगा कि इट इज नॉट ए सेफ नोड अंटिल गेट। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0 को अनसेफ मान के चल रहा हूँ एंड 1 को सेफ मान के चल रहा हूँ। सो फाइनली वी आर मेकिंग कॉल्स फ्रॉम 0 to n minus 1, दैट इज 6, n की वैल्यू यहाँ पर 7 थी आई गेस। हाँ, तो जीरो क्या करेगा ना, जीरो क्या करेगा, जीरो कॉल करेगा कि उसके एडजेसेंट नोड के लिए, जीरो कॉल करेगा पहले 2 के लिए मान लो। अब जीरो से कॉल आई, जीरो से कॉल आई, उसने कॉल किया 2 को, मान लो। ठीक है, अब 2 क्या करेगा, 2 कॉल करेगा इसके 5 को, 2 कॉल करेगा 5 को, 5 बोलेगा कि ट्रू हूँ, 2 बोलेगा कि मैं ट्रू दे रहा हूँ तुझे कि जा भाई। जीरो से जो तो पाथ बन रहे थे 2 वाला, ये बोल रहा है ट्रू है, और अब 1 बचा हुआ है। इसका क्या आंसर आएगा उसको डिटरमाइन करने के लिए हम फिर से एक जो रिकर्सिव स्टैक में कॉल होएगा, जीरो के ऊपर 1 कॉल होगा। अब 1 क्या कर रहा है, 1 तो डायरेक्टली 2 को कॉल करेगा और 3 को कॉल करेगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी डिटरमाइन हो गया था जीरो के कॉल में। लाइक सेफ, सेफ और टर्मिनल ऐसा है कुछ था, इस दोनों को ही मैं ट्रू मान के बोल रहा हूँ कि हाँ दिस इज ए सेफ नोड इटसेल्फ और टर्मिनल नोड सेल्फ, तो दोनों को मैं ट्रू बोल रहा हूँ। तो 1 के पास क्या ऑप्शन था, 1 के पास था 2 को कॉल करने का, 3 को कॉल करने का। 1 ने क्या बोला ना कि 2 को पूछो, 2 बोला कि भाई मैं तो ट्रू हूँ, ऑलरेडी डिटरमाइंड व्हेन द जीरोथ नोड वाज कॉल्ड फॉर डीएफएस। 3 बोला कि भाई मैं क्या करूंगा, कि 3 बोला कि मैं तो कनेक्टेड हूँ सिर्फ जीरो से। तो 3 ने क्या करा, 3 ने क्या करा दिया, जीरो को कॉल मिला लिया। 3 ने क्या करा, जीरो कॉल मिला रहा, तो 3 एट द एंड इवेंचुअली क्या करेगा, उसका जो ये तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसका ट्रू आया था, इसका फॉल्स आया, देखो अब डीएफएस कॉल चल रहा था, इसने फॉल्स दिया, इसने ट्रू दिया, दोनों का दोनों दोनों जितने भी एडजेसेंट नोड है सारे अगर ट्रू दे रहे हैं, देन ओनली यू कैन से दैट द करंट नोड itself also a safe node, but we can't say this thing कि one is safe right now because 2 has given true and 3 has given false, so one will return false। अब 2 ने क्या रिटर्न किया था, ट्रू रिटर्न किया था जीरो को, पर 1 ने रिटर्न कर दिया फॉल्स, तो इसके चलते हमारा कौन से नोड पता चल गया, 0 1 3 पता चल गए फॉल्स, 2 एंड 5 पता चल गया ट्रू। अब मैं 0 से 6 तक ट्रैवर्स कर रहा था, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 0 ट्रैवर्स हो गया, 0 कॉल में ही 2 आ गया था, 5 आ गया था, फिर 1 आ गया था, 3 आ गया था, बचा कौन, 4। 4 से मैंने देखा 4 वाज कनेक्टेड टू 5 एंड 5 इज रिटर्निंग की ट्रू, तो 4 ऑल्सो गॉट ट्रू, एंड फाइनल बचा 6, 6 से तो कोई था ही नहीं, तो इट ऑटोमेटिकली गॉट ट्रू। तो ये तुम सिंपल डीएफएस का है। अगर आप ट्राई करना थोड़ा डीएफएस एल्गोरिथम लिखने के लिए, अगर आप बिल्कुल ही आपके पास थोड़ा कम आइडिया है डीएफएस वगैरह के बारे में, तो आप प्लीज लीव ए मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, सो मैं आपके लिए डीएफएस या फिर बीएफएस दोनों ही जो भी एल्गोरिथम आपको रिक्वायर्ड होगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बट फॉर द टाइमिंग आई एम होपिंग दैट यू आर, इफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सो यू हैव at least known idea of you do have the idea of this DFS call and all. So yes, this was the approach one, this was the approach one। ठीक है, अब हम सीखते हैं खान्स एल्गोरिथम के बारे में। दिस इज द प्रिटी इंटरेस्टिंग पार्ट दैट वी आर गोइंग टू हैव द डिस्कशन टुडे। तो खान्स एल्गोरिथम क्या कहता है ना भाई, खान्स एल्गोरिथम बेसिकली ये कहता है कि देखो 1 2 3 ऐसा है मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ है, 2 having an outer edge to 4 and 4 having an outer edge to 5। तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि जिन जिन का इन डिग्री है ना कम, मतलब सॉरी जिनका आउट डिग्री कम है, जिसका आउट डिग्री कम है, जिसका आउट डिग्री कम है, जिसका पाथ कोई बाहर की तरफ नोड नहीं है, तो तुम उससे पहले प्रोसेस करो। अच्छा ठीक है, अब प्रोसेस करते टाइम तुम ये करो कि जितने भी इन डिग्रीज नोड है ना इसके लिए, जितने भी इनकमिंग एजेस है टू दैट पर्टिकुलर नोड, इनको पहले इसे प्रोसेस करते टाइम इसे हटाओ, और उनके उसको जो पॉइंट कर रहे हैं उन हर इंडिविजुअल नोड पे जाके बताओ कि ये वाली जो इंडिविजुअल कनेक्शन था ना तुम बना रहे थे, इसको हटा दो क्योंकि ये हट चुका है। तुम बोलोगे कि यार फिर तो ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने की। अब सोचो ना कि nth नोड था, हर nth नोड के लिए तुम अगर उसके करस्पॉन्डिंग एटमेक्स n-1 होते और उन सबके
ग्राफ में मतलब उसके एडजेसेंटली लिस्ट में जाके बोल रहे हो कि अरे यार nth के लिए हटाना है, तो 0 to n-1 तक सबके एडजेसेंसी लिस्ट चेक करो, क्या इसके में n है, क्या 1 के में n है, क्या 1 से कोई आउटर एज है n तक, कोई 2 से आउटर एज है n तक, सारे को प्रोसेस करो। फिर उसके बेसिस पे कंफ्यूजन आती करके खान एल्गोरिथम ने कुछ एक ट्रिक सा लाए थे कि एक अप्रोच बताया था अपने एल्गोरिथम में। जो भी अप्रोच बताया तो इवेंचुअली उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि जो भी एट द फाइनल सर्कल बना रहे हैं, जो भी एक साइकिल बना रहे हैं, कभी भी उस नोड के पास इन डिग्री और आउट डिग्री में से कभी भी कोई भी दोनों फैक्टर में से कोई भी जीरो नहीं होगा। So he stated that कि अगर the setup, let's say कि there are 4 setup nodes, they are forming cycle, there are 4 setup nodes, they are forming cycle, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक ऐसा नोड उनमें से एग्जिस्ट करता है जिसके पास इन डिग्री या फिर आउट डिग्री कोई एक फैक्टर जीरो। अगर जीरो होता तो फिर हम उसे साइकिल में कंसिडर कर ही नहीं रहे होते। ऑब्वियस सी बात है ना कि तुम यहाँ से शुरू कर रहे हो फिर ऐसे रिटर्न इसके पास आ कैसे रहे हो अगर कनेक्शन बना नहीं है। तो इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया। ही टुक दिस वन एज द की पॉइंट कि इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों में से कोई एक बिल्कुल भी जीरो नहीं होगा, मतलब दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ही होगी। इन डिग्री इज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 एंड आउट डिग्री आल्सो ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, स्टेप 1 में इसने कहा, स्टेप 1 द कांस एल्गोरिथम स्टेट्स कि तुम ना अगर ए से बी कनेक्शन है, ए से बी अगर कनेक्शन बना हुआ है तो तुम एक एज बनाओ बी टू ए। ठीक है, एक एज बनाओ बी टू ए। ओके, अब क्या करो तुम, अब सबके इन डिग्रीज काउंट करो। मतलब एक सेकंड मतलब उन्होंने कहा कि सबके पास जो भी कनेक्शन बन रहा था ऐसे उनका रिवर्स बनाओ, रिवर्स बनाओ। अब सोचो जिसके पास, अब जिसके पास आराम से सोचना, जिसके पास पहले कहाँ बताया था हमने, ये वाला सवाल था ना, राइट। हम्म, अब देखो जिसके पास पहले जीरो, जिसके पास पहले जीरो आउट डिग्री थी, जीरो आउट डिग्री थी एंड एक्स नंबर ऑफ एजेस इनकमिंग थे, वो सारे आउटगोइंग हो गए। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसके पास अगर आउट डिग्री जीरो था ओरिजिनल स्टेट में, जब मैंने ये ग्राफ को रिवर्स करा, रिवर्स इन द सेंस, रिवर्स इन द सेंस, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम एट फर्स्ट। सो इनिशियल डायग्राम वाज लाइक दिस, इनिशियल डायग्राम वाज ऐसा कुछ बना, 0 1 2 3 4 5 6, 4 to 5, 2 to 5, 3 to 0, 1 to 2, 1 to 3, 0 to 2। ठीक है, ये था। और मैं कह रहा था कि इसका जो आउट डिग्री है जीरो था, इसका आउट डिग्री है जीरो था, इसका आउट डिग्री 1 था, इसका इन डिग्री जीरो था। ये सिनेरियो था ओरिजिनल में। बोल रहा है कि रिवर्स बनाओ, रिवर्स मतलब ए टू बी अगर एग्जिस्ट करता है तो बी टू एक एज बनाओ। मतलब अब देखो 0 1 2 3 4 5 6, तो 4 to 5 था तो 5 to 4 बनाओ, 2 to 5 था तो 5 to 2 बनाओ, 1 से 2 था, 1 से 3 था तो 3 to 1 एंड 2 to 1 बनाओ, 2 to 0 बनाओ, 3 to 0 था तो 0 to 3 बनाओ, और 2 to 5 था तो 5 to 2 बन गया, है ना। अब देखो जिसका आउट डिग्री जीरो था, अब उसका इन डिग्री जीरो हो गया, है ना। दिक्कत क्या आ रही थी ना, वो प्रोसेस करना चाह रहे थे, वो प्रोसेस करके ऐसा कुछ करना चाह रहे थे कि हर एक के जो कनेक्शन कनेक्टेड नोड्स है, सबसे जिसके पास आउट डिग्री ओरिजिनल एरे में जिसके पास कम है ना, उसको प्रोसेस करो और उसको जो पॉइंट कर रहे हैं उनको हटाओ। तो इवेंचुअली तुम्हारे पास ऐसा एक सेट आ जाएगा जिसके आउट डिग्री कभी जीरो मिलेगा ही नहीं, और जो जिसके पास आउट डिग्री जीरो मिला ही नहीं वो कभी प्रोसेस होगा नहीं। तो तुम एट द एंड बोल सकते हो जो प्रोसेस नहीं हुए ना वो सारे
फॉर्मिंग ए साइकिल। बट वो सेम चीज में दिक्कत क्या है ना, कि आउट डिग्री पॉइंट्स को जाके तुम हटाने के लिए ना तुम्हें हर बाकी वो 0 टू n माइनस वन, मतलब nth नोड को तुम अगर हट प्रोसेस कर रहे हो तो 0 टू n माइनस वन सबके पास जाके तुम ये पूछते क्या तुम्हारा कोई आउट गोइंग एज है टुवर्ड्स n, क्या तुम्हारा कोई आउट गोइंग एज है टुवर्ड्स n, अगर है तो तुम उसे हटाओ। ये दिक्कत को, ये दिक्कत क्या दे रही थी ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दे रही थी। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बेटर करने के लिए ही इन्होंने क्या करा कि वो कॉन्सेप्ट ओरिजिनल एरे से रिवर्स एरे बनाने का एक कॉन्सेप्ट ले आए, जिसके चलते क्या हुआ, जिसका आउट डिग्री 0 था ना, इवेंचुअली इसका इन डिग्री 0 हो गया। इसका आउट डिग्री 0 था, उसका इन डिग्री 0 हो गया, और उन्होंने कहा कि जिसके पास इन डिग्री 0 है उनको पहले प्रोसेस करो, और उन्हें हटाते टाइम वो जिसको रिवर्स एरे में जिसको पॉइंट कर रहे हैं उनको ओमिट करते चलो करते चलो करते चलो। और ऐसा तुम एक स्टेट पे रीच करोगे अगर पूरे ग्राफ में, अगर पूरे वो ग्राफ कनेक्शन जो जो ग्रिड्स है, क्या बोलते हैं उसे, नेटवर्क से बना हुआ है, अगर उसमें कोई लूप बना रहा है ना, ऐसे बंच ऑफ नोड्स मिलेंगे जो लूप बना रहे हैं, जो एक लूप फॉर्मेशन साइकिल फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनका इन डिग्री कभी 0 होगा ही नहीं। और तुम फाइनली बता देना कि जो प्रोसेस नोड नहीं है वो सारे दे आर ए पार्ट ऑफ ए साइकिल, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या करा, बड़ा इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट ले आया है कि इन डिग्री जिसका 0 है ना उसके नोट करते चलो, उसको नोट करते चलो। अब ये नोट कैसे करोगे, तो इन डिग्री के लिए ना उन्होंने क्या करा, एक वेक्टर बना दिया जिसमें इन डिग्री नाम देके उसमें ना n कॉमा 0 साइज कर दिया कि 0 टू n माइनस वन नोड से सबका क्या करेंगे अपन, यही कर देंगे। बोले कि एक काम करो, रिवर्स साइकिल तो बनाना है एडजेसेंट वाला, ये मान लो रिवर्स को तुम एडजेसेंट, या मैंने क्या नाम दिया होगा, या रिवर्स जो भी है रिवर्स ही नाम दे दो या एडजेसेंट नाम दे दो, जो भी चलेगा। ये भी सेम साइज n रोज कैरी कर रहे होंगे, 2D ग्रिड का बना होगा, क्योंकि 1 टू 2 जा रहा था, 2 टू 1 आएगा ही ना। तो अभी तुम क्या करना, 1 0 से लेके i लेस देन n तक सारे नोड पे जाके तुम पूछो भाई तुम्हारा क्या नोड है, तुम्हारा ये से u नाम दे दो, u u u, ये सारे नोड पे जाके पूछो, इस सारे नोड पे जाके पूछो, कलर चेंज करते हैं, इस सारे नोड पे जाके पूछो कि तुम ग्राफ में किसके साथ कनेक्टेड थे, तुम्हारा आउटगोइंग एजेस टुवर्ड्स कौन से नोड था, मतलब यू नोड कौन से के साथ किसके साथ कनेक्ट हो रहा था, किसके साथ कनेक्ट हो रहा था, यू कनेक्ट हो रहा था किसी के साथ, वी के साथ, मतलब ये जो यहाँ पे सेट ऑफ वीज बन रहे हैं, तो ये बोलेगा कि तुम रिवर्स में क्या करो ना, रिवर्स ऑफ वी में, अब देखो यू से वी तक बन रहा था ओरिजिनल में, अब रिवर्स में क्या बनेगा, वी टू यू, वी टू यू मतलब वी कैन से दैट रिवर्स ऑफ वी इज हैविंग दिस आउटगोइंग एज ऑफ, यहाँ पे पी भी लिख रहा हूं फॉर पुशबैक, कि u से b v जो जा रहा था अभी रिवर्स एरे में v टू u जा रहा है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, v के साथ रिवर्स्ड कनेक्शन एजेस में u नोट कर रहा हूं, और इन डिग्री ऑफ, और इन डिग्री ऑफ u को पहले जिसका जो आउट डिग्री था, पहले जो आउट डिग्री था यहाँ पर, पहले जो आउट डिग्री था वो इन डिग्री ऑफ u में +1 कर दे रहा हूं। तो इवेंचुअली मैं ऐसे स्टेट में पहुंच गया हूँगा इस ऑपरेशन के बाद कि मेरे पास ये वाली एरे, ये वाली नेटवर्क बन गई होगी, और मेरे पास सबके इंडिविजुअल इन डिग्रीज नोट हो गए होंगे। क्लियर अभी तक, अभी तक यहाँ पर आई होप यू गाइस गॉट इट, ओके। सो एक सेकंड में थोड़ा गंदा कर देता हूँ बीच बीच में, राइट। तो हमारा ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 और 4, ये 5 और 6। तो अब क्या कह रहा है, तुम ऐसे डीएस में डालो जो कि हमें बस एलिमेंट्स डालना है, निकालना है, तो तुम क्यू यूज करो, डी क्यू यूज करो, डजेंट मैटर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें एफिशिएंट हो वो यूज करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा। तो लेट मी यूज येलो वन। सो यस, सो ये कह रहा है कि इसकी डिग्री क्या हुई होगी, जिसकी आउट डिग्री पहले 0 थी, जब आउट डिग्री पहले 0 थी, इसकी इन डिग्री अब 0 होगी, तो इसकी 0 है, इसकी भी 0 है ना, 0 है, मतलब इस इसको पहले प्रोसेस करना है कहाँ से, एल्गोरिथम के हिसाब से। अब 4 की क्या है, 4 की क्या है, इन डिग्री 1 बन गई, 3 की इन डिग्री क्या बन गई, ये वाली बन गई 1, 2 की इन डिग्री क्या बन गई, एक, एक, और बस एक ही, एक बन गई, ठीक है। मैं थोड़ा क्लियरली बना दूं क्या यार, इतना गंदा सा बना, रुक जाओ, 0 1 2 3 4 5 और 6 को तुम यहीं कहीं लिख दो, डजेंट मैटर। और इसमें क्या हो रहा है, 0 टू 3 जा रहा है, और 0 टू 3 एंड 2 टू 0, 2 टू 1 एंड 3 टू 1, 3 टू 1
and 2 to 1, 3 to 1 हो गया. Okay, let me 2 to 0 and then 3 to 1 and 2 to 1 and then 5 to 2, 5 to 2 and 5 to 4. 1 2 3 4 5 6 6 ही थे क्या? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. वही होप ऐसा ही होगा, मैंने कहीं कुछ मिस नहीं कर दिया होगा. पता नहीं कर दिया तो भाई सॉरी. एक एक सेकंड, 1 2 3 4 2 to 1 था. 2 to 1 भी तक बनेगा. 2 to 1 तो बनाया था. कौन सा रह गया फिर? पता नहीं, जो भी हो, मतलब देख लेना, ठीक है. आई होप कि साइकिल बस टूट ना जाए मेरे इस मिसिंग के चलते. हाँ, 3 to 2 वाला मिस हो गया था. देखो 3 to 2 वाला मिस हो गया था इसमें. पहले क्या था? पहले था, एक सेकंड यार. ओके, 1 to 0 नहीं है क्या कहीं मेरा? अच्छा अच्छा, हाँ 0 to 1 था, 1 to 0 डालना है. राइट, 1 to 0 डालना है. ठीक है, अब ये हो गया ना. अब मेरा देखो, तुम इन डिग्री किसका 0, इसका 0 था पहले. अब 6 का भी 0 था पहले. 6 तो भाई यार, 6 तो अपना बिंदास है. ठीक है, बोला कि पहले तो 6 प्रोसेस हो गया. जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो प्रोसेस हो रहे हैं उनके लिए तुम एक मार्कर ले लो कि एंड प्रोसेस्ड करके ऐसा कुछ ले लेना, और जिसमें 0 1 2 3, ये भाई 0 1 2 3 4 5 6, इन सबको प्रोसेस्ड में एक तुम ऐसे खुद से कन्वेंशन जो जिसको सुविधा अच्छा लग रहा है, सही सा लग रहा है, कर देना. जो पहले प्रोसेस हो रहा है, 6 प्रोसेस हो गया, 1 डाल दो. अब मैं लाऊं कि 6 से तो भाई वो तो बिंदासा था, उसका कोई आउटगोइंग ना इनगोइंग था, उसको तो छोड़ो पहले. अब बचा 5. मैं बोला कि 5 को ओमिट करने से करते टाइम ना ये देखो कि 4 और जिसके साथ वो कनेक्टेड है, 4 और 3 के साथ कनेक्टेड है, उसके साथ जो एज बन रहा था ना उसे हटाओ. उसे हटाने के बाद ये चेक करो कि ये हटाने के बाद क्या इन डिग्री एजेस उसके 0 हुए. मैंने कि बिल्कुल भाई, ये हटा दिया था, एक था वो 0 हो गया, तो 4 का 0 हो गया. 3 का 0, मैंने कहा नहीं यार 3 का तो ये एग्जिस्ट करता है. मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेसिंग किसका करना है? पहले 6 गया था, फिर 5 गया. अभी रुक जाओ, पहले 6 गया था, फिर 5 गया था, फिर 4 अभी गया है ना. 4 जब गया, 4 किससे कनेक्टेड था क्या? 4 वॉज कनेक्टेड विद एनीबडी? नहीं, 4 से किसी कोई गया नहीं था. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था. अभी क्या हुआ, और एक चीज हमने मिस कर दिया क्या? 5 to 2 वाला भाई हमने तो बनाया नहीं था, है ना. 5 से 3 थोड़ी था, 5 से 2 था ना. राइट 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 यार, डायग्राम थोड़ा गलती कर दिया था. ओके, लेट मी check it. Yes, the this edge was pointing to 2. ठीक है, तो मैंने क्या करना था कि 5 जब ओमिट हुआ ना, 5 का कनेक्शन था 4 के साथ, वो हटा दो, और 5 का कनेक्शन था 2 के साथ, वो हटा दो. अब मैंने देखा क्या यार, किस किस का 0 हो रहा है. मैंने देखा कि 4 का 0 हो रहा है, और 3 का हो रहा है, नहीं. 0 का हो रहा है, नहीं. 1 जा रहा है, 2 जा रहा है. ठीक है, 1 का 0 हो रहा है, नहीं, यहाँ पर तो 2 जा रहा है. 2 का 0 हो रहा है कि हाँ भाई 2 का 0 हो रहा है, तो नेक्स्ट प्रोसेस 2 को करो. 4 का प्रोसेस हो गया, 5 का हो गया, इन सबको मार्क कर दो. अब बचा 2. 2 को जब ओमिट कर रहा हूँ ना, 2 से जब आउटगोइंग एजेस हैं वो दो हटा दो, है ना. एक तो था 1 के साथ, वो हट गया. एक था 0 के साथ, हट गया. अब बोला कि भाई मैं भी प्रोसेस होंगे, चलो. बोला कि और कोई है जिसका एंड डिग्री 0? मैंने कहा कि यार एक का तो एंड डिग्री ये है, 0 का एंड डिग्री ये वाला है, 3 का एंड डिग्री ये वाला है. सो बाकी जो बच गए वो they are not having this end degree factor as 0. So we have to say all those are remaining, they are 0 and 1 and 3, and the processed ones are 2 and 4 and 5 and 6. So we have to say that this bunch of this set of node are called safe node, or some of they might be called terminal nodes. तो ये था भाई, कहाँ से हल कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं इसमें.
तो हमारा जो कोड है वो थोड़ा फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ कुछ देखा हुआ था कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रहा है। सो लेट्स डिस्कस द कोड पार्ट। सो मैंने क्या करा ना कि रिवर्ट्स को एडजेसेंट नाम दे दिया, तुम अपना रिवर्स ग्राफ बना देना, ठीक है। रिवर्स ग्राफ ऑफ एन बना दिया, इन डिग्री ऑफ एन बना दिया कि इन डिग्री फैक्टर नोट करना है, जो पहले आउट डिग्री था अब इन डिग्री नोट कर रहे थे ना कांस एल्गोरिथम के हिसाब से, कांस के हिसाब से अब इन डिग्री चेक कर रहे थे। अब क्या कर रहा हूँ, 0 से लेके n तक मैं ट्रावर्स कर रहा हूँ, उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी v है, u के करेस्पॉन्डिंग जितने सेट ऑफ नोड्स हैं जो कनेक्टेड थे, उसको मैं रिवर्स करूंगा। तो रिवर्स कर दूंगा तो पहले u से v जा रहा था, u से v जा रहा था, v से u जाएगा, तो इन डिग्री ऑफ u बढ़ गया एंड v के एडजेसेंट में ये बढ़ गया। तो इसके तो वैसे कोई जरूरत था नहीं, मतलब हाँ ये अभी जरूरत था भाई, बिल्कुल क्यों नहीं जरूरत था। तो मैंने क्या करा कि एक बार ट्रावर्स करके सेट कर दो, करने के बाद तुम्हें क्यू ले लिया था, तुमने क्यू लिया, मैंने क्यू लिया, तुमने डी क्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बस तुम उसका प्रायोरिटी क्यू कोई ले रहा है तो ऑब्वियसली उसका एक दूसरा फैक्टर भी स्टोर करना पड़ेगा, एक नोड के साथ उसका पहला वो वैल्यू आना चाहिए, मिन हीप ले लेना, पहला वैल्यू तुम उसका इन डिग्री फैक्टर लिख देना, तो ऑब्वियसली सारे जीरो वंस आर गेटिंग प्रोसेस्ड, सो कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन ना भी लो प्रायोरिटी क्यू में, खाली नोड डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो सबसे छोटा है सबसे बड़ा वो प्रोसेस होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर तुमने देखा कि भाई सारे नोड को चेक कर दे, जो इंडिग्री जिसका जीरो है ना उसको पहले क्यूटीएम प्रोसेस करने के लिए डाल दो, प्रोसेस के लिए डाला है। अब आंसर में मैं आंसर स्टोर करूंगा, मैं वेक्टर ये वाई लूप चलाऊंगा जब तक ये जो क्यूटी मेरा क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाता है ना। मैंने कहा कि यार करेंट नोड तो मेरा यू है अभी, फ्रंट से निकाल क्यू, अगर क्यू ले रहे हो तो उसका प्रायोरिटी क्यू का पी क्यू डॉट टॉप होता है और यहाँ पे क्यू का डॉट फ्रंट होता है, ठीक है। अब निकालने के बाद इसको पॉप कर दो, इसके जो भी एडजेसेंसी में एडजेसेंसी ऑफ, अब हमें रिवर्स वाला देखना है, रिवर्स को मैंने क्या दिया था नाम, एडजेसेंट दिया था। अब मेन जो ग्राफ था उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है बना, तो मैंने क्या करा कि पहले एक तो ना पहले माइनस माइनस ऑफ एक्स, एक्स माइनस माइनस क्या होता है ना, पहले कि तुम चेक करते हो फिर माइनस करते हो, ये पहले तुम माइनस करते हो देन गेटिंग चेक्ड। तो मैंने क्या करा कि यू से आउट गोइंग एच था वी की तरफ, तो यू ओमिट हो रहा है तो एक एन डिग्री घटेगा वी का, तो मैंने कहा कि पहले इसे घटाओ और फिर चेक करो क्या ये जीरो है, अगर जीरो ना तो इसे प्रोसेस करने के लिए वी में डाल दो। और आंसर जो मेरा है कि करंट तो प्रोसेस हो चुका है, तो इसको मैं तो स्टोर कराऊंगा ही कराऊंगा यू को, एट द एंड मैंने सॉर्ट कर दिया क्योंकि दे हैव आस्क्ड अस टू रिटर्न द सेट ऑफ द नोट्स, दे आर द सेफ नोट्स इन sorted orders, I just sorted it and returned the answer vector. सो ये था कहाँ से एल्गोरिथम एट द एंड। थोड़ा मैं स्पीड से बोल रहा हूँ, शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा ना हो गया होगा, सो अगर ज़्यादा हो गया होगा तो सॉरी गाइस, थोड़ा देख लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो ये थोड़ा गचपच हो गया, थोड़ा इसे हटा देते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। पहली बात भाई, पहली बात इन्होंने जो बता दिया था कि नंबर ऑफ एजेस क्या है, ये चल कितनी बार रहा है, ये चल रहा है ना, ये वाली जो चल रहा है, अरे ये जो लूप चल रही है दैट इज रनिंग फॉर द नंबर ऑफ एजेस टाइम, नंबर ऑफ एजेस कैन रेंज अप टू वन, फ्रॉम 1 to 4e4। तो ये कह सकते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ 4e4 तक आ सकती है एट मैक्स। और ये तो सिंपल है, ऑर्डर ऑफ n जो कि 1e4 है। और ये फिर से अपन चला रहे हैं नंबर ऑफ नोड के लिए, नंबर ऑफ नोड अंदर चल रहा है एजेस के लिए, तो वही बात है कि नंबर ऑफ एजेस के लिए चल रहा है। और ये भी अप टू 4e4 तक आ सकता है। ये तो सॉर्ट कर रहे हैं तो n log n हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर 1e4 हो सकती है एट मैक्स। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर बन जाएगी एट मैक्स ऑफ 4e4 तक जाएगी। तो तुम ये बता देना कि भाई यही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्या बता सकता हूँ, n क्रॉस m ले लेना अगर वो, या फिर हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एजेस ऐसा बता देना, जो कि अपना 4e4 तक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कंस्ट्रेंट में गिवन था। और स्पेस की बात करें दैट इज टू डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एजेस, हाउ द दिस वन इज डिजाइंड फॉर n क्रॉस n। अच्छा वी हैव टू डिजाइन इट, हम पहले क्या कर रहे हैं, पुश बैक कर रहे हैं ना, मैं तो इनिशियली कोई n क्रॉस n का बना नहीं रहा हूँ, मैंने बस बताया कि n का बना रहा हूँ, मैंने बताया कि सिर्फ n के बना दिया, और जो जरूरत जहां पर पड़ रहा है, किसी को 1 की, किसी की एडजेसेंट 1 होगी, किसी की 10 होगी, तो मैं उस हिसाब से पुश बैक कर रहा हूँ। तो मेरा जो नंबर ऑफ एजेस है ना, वही स्पेस बन रहा है यहाँ पर, यहाँ बन रहा है मेरा क्यू टी कैन गो अप टू लाइक, जो जो क्यू है ये भी ऑर्डर ऑफ n तक जा सकता है, नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। अरे यार हाँ, नंबर ऑफ नोड्स, तो और कहाँ स्टोर करा रहा हूँ, ये आंसर तो ऑर्डर ऑफ एन ही जाएगा, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो बस यार, तो स्पेस की भी बात करें तो ये भी बन गया कि ऑर्डर ऑफ नोड्स प्लस एचएस, तो एचएस मान के चलते हैं कि थोड़ा ज़्यादा होगा, तो फिर जो भी ज़्यादा होगा उनका ऑर्डर आ जाएगा भाई। तो एटमैक्स 4e4 तो का ही,
तो दोनों में ही time complexity and the space complexity both depend on the number of edges. So we can say that this was it. So in this today's video, we got to learn about the Khan's algorithm and why they are concerned more about the in-degree edges being zero in the reversed one, rather than performing the operation on the original graph itself. So we have to, like, please watch the video आराम से. अगर कोई doubt है, if you have any doubts related to this today's lecture, any related concepts like the DFS, BFS, or anything else, please drop a comment in my comment section, and we will be discussing it in that later. So I hope you guys liked it, and until the next video, bye guys, take care.